Morning, students. Today I will give you the explanation of important questions of OC, and that is also the chapter number 3, planning, which is related to section E. In this chapter, from this chapter, 5 markers are only coming. For total 5 questions are asked, and out of that, in this today's video, I will explain you 2 questions. First is explain the characteristics of planning in detail, and the another one give the definition of planning and explain the process of planning. Okay, means one is process of planning, and first one is characteristics of planning. Okay, now begin. Let's begin with first question. Explain the characteristic of planning in detail. In this topic, meaning of planning, which is given according to George R. Terry, that is, function of planning means assumption for results, policy to follow, function, stages, and to decide the method to be followed. जॉर्ज आर टेरी ने प्लानिंग को एक्सप्लेन किया है. मीन्स ही हैड गिवन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. दैट प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ द प्लानिंग. प्लानिंग इज़ अ फंक्शन, एक प्रोसेस है, और वो किस पे बेस्ड है, एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. एंड एजम्पशन ऑफ द रिजल्ट, एजम्पशन किसका, एजम्पशन फॉर द रिजल्ट. एंड दे आर मेकिंग द पॉलिसी विच आर दे आर फॉलोइंग इन अ फ्यूचर टर्म्स, stages for the future, functions whichever they will perform, that they will decide in terms of planning. To method means in terms of method, in terms of process, in terms of policy, in terms of rules, stages, everything they will particularly plan it out accordingly. Okay, and this full process, this full function is known as planning according to George R. Terry. Now we will move on the characteristics of planning. Total 11 points are there. First is universal process, second primary function, third conscious and mental process, fourth flexibility, precise, fifth, sixth forecasting is essential, seventh concerned with future, eighth continuous process, ninth objective oriented activity, 10th list of alternatives, and 11th is requires decision process. The main 11 characteristics of planning are this. Now we will learn in detail about all the points, 11 points. How planning is universal process, because we found planning in every field. Planning हम हर जगह पाते हैं. Second, for example, if we talk in which fields, पॉलिटिकल में हम यूज़ करते हैं प्लानिंग को, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, सोसाइटी के अंदर यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं. सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. नाउ प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑल्सो. वाई इट इज़ प्राइमरी फंक्शन? Because it's the basic function of management. With the help of planning, we are handling the other functions of management. For example, organizing, staffing, directing, controlling. ये जो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो पॉसिबल किसके टर्म पे है, बेसिक ऑफ प्लानिंग के टर्म पे, इम्प्लीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज इट्स कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस. इसमें पूरी तरह से माइंड वर्क का काम होता है और केयरफुली आपको काम करना होता है. मीन्स यू आर एज्यूमिंग फॉर द फ्यूचर एंड यू आर प्लानिंग आउट फॉर द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन. सो उसके टर्म्स पे आपको काम करना है. डिसीजंस जो भी लेने हैं वो केयरफुली लेने हैं और वो पूरी तरह से कैलकुलेटिव एजम्पशन बेस पे होते हैं. तो हमें ध्यान से काम करना है, इफ़ेक्टिव से, एफिशिएंटली से, परफेक्शन से. और ये पूरी तरह से अगर आपको इफ़ेक्टिव वर्क चाहिए, आपको एफिशिएंट वर्क चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए, तो आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा और मेंटल प्रोसेस के साथ, माइंड के साथ काम करना पड़ेगा. इसलिए प्लानिंग को कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस भी कहा गया है. फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी. प्लानिंग इज़ नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट. वो एक टाइम पे आपने प्लानिंग कर दी तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लानिंग आप हमेशा कंटिन्यूअस वही मेंशन करोगे या उसे फॉलो करोगे. एज पर द टाइम, एज पर द सर्कमस्टेंसेज एंड एज पर द सिचुएशन यू विल change the planning, and that is possible in the planning. That's why it is not a static element. Now
Fifth quality, that is precise. What is the meaning of precise? Precise means short. Whatever the planning you are doing for any activity, for any process, or for any function, you have to do it in a shorter manner. आपको फ्यूचर के टर्म्स पे प्रोसेस करना पड़ता है, मैटर जो भी है वो स्टडी करनी पड़ती है एग्जैक्टली और जो भी आपको डेटा मिलता है, स्टैटिस्टिकल डेटा या कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, वो परफेक्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लेंदी, इट शुड नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग, एंड इट शुड नॉट बी बोर. So anyone can connect with the particular planning and they can work it out as per the planning. तो प्रिसाइज होना चाहिए. आपके साथ कोई भी काम जुड़ता है कि काम करने के लिए रेडी होता है तो वो लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट स्मार्ट वर्क करना चाहिए. नाउ द सिक्स क्वालिटी इज forecasting is essential. Forecasting is essential means you have to predict for the future. As you are knowing, प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर और फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो प्लानिंग जो भी हम बिजनेस यूनिट में करते हैं वो फोरकास्टिंग के टर्म पे करते हैं, फ्यूचर के टर्म पे करते हैं, और इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है. सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज कंसर्न विथ future. Planning totally involves future activities. You are whatever the activity, process, function, method, policy, whatever you are planning out, that you are doing for the future activities, not for the present. Second thing, to estimate the future circumstances, you have to follow the past records, you have to follow present accounts, and then only you can plan it out anything. That should be in a perfect way. Okay, so now eighth characteristic of planning is it is continuous process. It is not done for a one time, not for a two time. It is a continuous basis process. Continuous है और permanent process है planning. Process begins with the setup of the organization and continues till the end of the particular business unit or organization. As per the time and as per the circumstances, planning can be changed as per the requirement, but it should be in a continuous process. जैसा टाइम है, जैसा सिचुएशन है, हम उस पर चेंजेस ला सकते हैं, उसको स्टॉप नहीं कर सकते. वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही चलता रहता है. प्लानिंग हम कंटिन्यूस बेस पे वर्कआउट करते रहते हैं. 9 कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी. प्लानिंग कैसा है? particularly it's a objective oriented activity. Planning we are doing to achieve something, predetermined objective of the business. और वो achievements किसके? predetermined means before the activity we had implemented or done the in terms of action, before that we are assuming, we are predetermining the objective and we are doing the planning to fulfill that objective of business. That should be easily achieved, that should be done on the basis of target. That's why we are doing the planning. ओके, हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है इजीली और हमें अचीव करने हैं हमारे टारगेट्स को प्रॉपरली. वो पॉसिबल होता है प्लानिंग के बेस पे ही, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी भी कहा गया. 10th, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव. व्हाट इज लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स? प्लानिंग is used includes in any field, means in any field you can plan it out. Okay, whatever the activity, whatever the things you want to achieve, you can plan it out on a future basis. For example, if you want to sell something in the future, okay, any product, any goods or any service, you have to sell it out. So in future terms, you have to start doing the advertisement now onwards only. So in terms of and advertisement also, we have the alternative choices. You cannot do the advertisement in one form. You can do the advertisement in terms of TV, in terms of hoarding, while giving the publication, while giving the advertisement in newspapers, magazines, weeklies. Okay, so these are the alternative sources which you can use in advertisement to give the, particularly to increase your sale through the advertisement, and that you have to do in the terms of future. So that is also possible because of planning. Now 11th characteristic of planning is requires decision process. The most important, planning requires great presence of mind. Whatever you are doing, process of planning, that should be done in a proper way out with your presence of mind.
decision properly should be taken, and that should be done in a best alternative which are good for your future, which are good for your planning that you have to take. For that you must require the calm mind, patience you want, and that should be in a great manner. I hope so this question is now clear in your mind. Now we will learn about the second question, that is give a definition of planning and its process. In this question we will learn about the process of planning, how we have to do the planning. Steps should be proper. It should not be पर्टिकुलरली विदाउट एनी सीक्वेंस. जो फर्स्ट पॉइंट पे है वो फर्स्ट पे ही होना चाहिए. फर्स्ट का आप थर्ड नहीं कर सकते. ये प्रोसेस प्रॉपर सीक्वेंस में ही जाना चाहिए. जैसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इफ़ यू आर प्लानिंग आउट प्रोसेस, आप प्लानिंग कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कर रहे हो कोई भी फील्ड के अंदर, कोई भी एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, कोई भी टारगेट या गोल को अचीव करने के लिए. तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू सेट द गोल. आपको क्या करना है, आपको सेट करना है गोल. एंड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी है, यूजफुल ऑफ मैनेजमेंट करना है, गोल्स को सेटअप करना है लॉजिकली, प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली और इंटेलेक्चुअली. ऑब्जेक्टिव आपको कैसे मेंटेन करना है, लॉजिकल होना चाहिए, इनलॉजिकल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिस्टिक टर्म्स पे होना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी उसकी दिखती हो. इम्पॉसिबल थिंग्स नहीं. आप सोचो कि कल मेरे को 50 करोड़ का सेल हो जाए, पॉसिबल नहीं है. रियल टर्म्स पे आपके बिजनेस यूनिट और कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करते, कोई भी चीज़ प्लान आउट करते हो, वो लॉजिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और माइंड बेस्ड होनी चाहिए, मेंटल इंटेलेक्चुअल बेस्ड होनी चाहिए. सेकेंड प्रोसेस, क्लेरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीमाइसेस मीन्स एजम्पशन, फोरकास्टिंग, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर. आपको प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिसीजन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर होना चाहिए. एजम्पशन जो भी आप कर रहे हो वो प्रॉपर होने चाहिए. जो भी आप चीज़ फ्यूचर के टर्म पे फोकस कर रहे हो वो डिपेंड्स होती है इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस के इनसाइड भी और बिजनेस के आउटसाइड भी, यानी मार्केट में भी. ये अगर प्रॉपर है, वो क्लेरिफाइड है कि आपको कैसे काम करना है, तो ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. द थर्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एंड इंफॉर्मेशन. थर्ड स्टेप क्या है, कोई भी चीज़ को आप प्लान आउट करते हो तो आपको कलेक्शन करना है, एनालाइज करना है इंफॉर्मेशन को. इफ़ यू वॉन्ट टू clarify, decide the premises, information has to be collected. Collection and analysis of information, third point of process of planning. Under this, after deciding the premises, necessary information has to be collected, and it's directly or indirectly. जो भी हम premises decide करते हैं, precise करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन उसकी जो भी कलेक्ट होती है वो डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है. एनालाइजेशन प्रॉपरली फ्यूचर बेस्ड रिजल्ट के ऊपर ही एक्सपेक्टेड होते हैं. वो हमें हेल्प करते हैं एनालाइज करने में. जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं प्लानिंग का, ठीक है, वो हमें एनालाइज करवाता है कि फ्यूचर में किस टाइप के हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं. थर्ड पॉइंट, मस्ट सी दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव. जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, वो उसी से रिलेट होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए. बेफालतू की इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी नहीं है. द फोर्थ प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लानिंग. अल्टरनेटिव प्लान्स मीन्स if you are analyzing, after collecting and analyzing information, alternative plans is to be made. मीन्स एक आपने प्लान बनाया पर आपके पास उसका बैकअप हमेशा रेडी होना चाहिए. लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव इज टू बी प्रिपेयर. आपके पास अल्टरनेटिव्स उसके हमेशा रेडी होने चाहिए. अल्टरनेटिव प्लान जो भी है वो हेल्पफुल है. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और ओरिजिनल प्लान कैन नॉट बी अप्लाई. Alternative plans are very much helpful to sort it out the problematic situation. जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अल्टरनेटिव अगर हमारे पास है प्लान आउट्स,
तो ओरिजिनल का कभी कभी नहीं पॉसिबल होते कि उस टाइम पीरियड पे हम ओरिजिनल प्लान्स को वर्कआउट नहीं कर पाते उसके बेसिस पे। तो हमारे पास अगर अल्टरनेटिव प्लान्स होंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हम आसानी से हैंडल कर पाएंगे। सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मीन्स जो भी प्लान आउट हम सिलेक्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव, वो बेस्ट होना चाहिए, वो सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए। ओके, द फिफ्थ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। इवेल्युएट करना है, हमें चेकआउट करना है, वर्कआउट करना है अल्टरनेटिव्स के ऊपर कि बेस्ट अल्टरनेटिव को ही हम लोग इवेल्युएट करें। वी विल डिटेल्ड उसी के ऊपर वर्कआउट करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट इज ऑल्सो कंसिडर फॉर लीस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। जो भी फैक्टर है अफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट को, वो अल्टरनेटिव्स के टर्म पे ही लिस्ट आउट किया जाता है। फॉर इवेल्युएशन प्रोसेस, अगर हमें प्रोसेस गो थ्रू करना है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के टर्म पे ही हम लोग प्रोसेस कर पाते हैं। तो बिजनेस यूनिट रिपेयर्स एन आइडल प्लान विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। मीन्स जो भी बिजनेस में हम रिपेयर्स करते हैं, आइडल प्लान को क्रिएट करते हैं, वो किसके हेल्प से? ऑपरेशनल रिसर्च वर्क से ही कर सकते हैं। मीन्स हर एक डेटा को लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव और इवेल्युएट किया जाता है, गो थ्रू किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है मैथमेटिकल टर्म पे भी और स्टैटिस्टिकल टर्म पे भी, और उसके टर्म पे वर्कआउट किया जाता है कि बिजनेस यूनिट अच्छे से प्रोसेस हो रहा है, प्लान आउट किया हुआ वर्कआउट हो रहा है या नहीं। सिक्स स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। हमें ऐसा वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड एंड एनालाइज्ड बाय साइंटिफिक एंड लॉजिकल मेथड एंड देन सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम लिस्ट। हमें ऐसे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है, अल्टरनेटिव्स को चूज करना है जिनके बेसिस पे साइंटिफिकल और लॉजिकल मेथड एनालाइज्ड हो, वर्कआउट हो, और उसके बेस पे हम बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सके। ये टर्म्स पे हमें प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को वर्कआउट करना है, सिलेक्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। सेवेंथ स्टेप क्या है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का? फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लानिंग प्लान्स। मीन्स फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट्स है, अल्टरनेटिव्स है, have to be considered as per the basic plan or in support of basic plan. These plans are known as subsidiary and derivative plan. Means हमारे पास different projects होते हैं, ठीक है, alternatives होते हैं जो basic plans के ऊपर consider होते हैं। उसको support करने के लिए हम लोग सब्सिडरी और डिराटिवली प्लान मीन्स एक की जगह पे दूसरा वर्कआउट किया जाता है। तो वो जो सेकेंड वन हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट की जगह पे, उसे डिरावेटिव प्लान कहा जाता है। सब्सिडरी मीन्स यू आर यूजिंग द ऑप्शन ऑन द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन, सो दैट इज नोन एज डिरावेटिव प्लान। When subsidiary plans are prepared, then it is necessary to evaluate all plans. जो भी प्लान आउट हमने किए हुए हैं अभी तक जितने भी किए हैं उनको इवेल्युएट करना, और उसके बेस पे ही सब्सिडरी प्लान का प्रिपरेशन होता है, सो दैट वाई नो टर्न्स टू अराइज एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। दैट्स वाई नो टर्न्स मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसे टर्निंग पॉइंट्स नहीं आते जहाँ पे हमारे लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम अराइज हो। हमें वही चीज़ वर्कआउट करनी है फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान के बेसिस पे, कि आगे चल के कोई भी हमारे हर्डल्स ना क्रिएट हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ना हो, और हम आसानी से हमारे सब्सिडरी प्लान के बेसिस पे उसको कवर कर सकें। एथ प्रोसेस ऑफ प्लान इज इवेल्युएशन ऑफ प्लान। इवेल्युएशन ऑफ प्लान मीन्स पूरी तरह से फॉर्मुलेट करना, इवेल्युएट करना सब्सिडरी प्लान्स को, और टायर प्लान्स इज ऑल्सो इवेल्युएट। फॉर इवेल्युएशन टेक्स द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट कंसर्न। आपको इवेल्युएशन करने के लिए आपको कौन चाहिए? एक्सपर्ट्स चाहिए, दोज हु आर वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर field. It helps to take a right decision on right time. If you are taking the help of the experts, then you can take a right decision on right time. Second, for proper result, follow the principle of look and leap. अब लुक एंड लीप का मतलब क्या होता है? ये रिजल्ट को कैसे प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं इस प्लानिंग प्रोसेस में, कि हमें बैक साइड पास्ट और के बेसिस पे, प्रेजेंट के बेसिस पे लीप लेना है। वी हैव टू वर्क आउट फॉर द फ्यूचर, ओके, एक्सपेंशन, and that is possible under the process of planning. So every stage evaluation is very much important. हर एक स्टेज को इवेल्युएट करना प्लानिंग के टर्म पे, that is very much important. I hope so the second topic, the process of planning, is also cleared in your mind.
And dear students, in next lecture I will explain you these three topics: explain the elements or components of planning, explain the limitations of planning, and discuss the types of plan. Okay, and hope so. I had reduced your burden. I had covered your doubts and cleared your particular all the points of both the question. And hope for the best. Next time you will continue with my video. You will watch my video and you can clear out your doubts. Have a nice day. Good day. Bye.